Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and good. Welcome to the second day of the O-level economics workshop. So, in today's class, we will be doing the following chapters. Number one, market failure. Number two, basic economic problem. Number three, labor market. Number four, money and banking. And number five, cost, revenue, and profit. We will be doing these five topics today. But before we start these topics, first, we need to do is we need to attempt the topical questions of the last four chapter which we did yesterday. That were demand, PED, market, and demand, PED, supply, and market. Right. So let's start with the question of those topic. Okay. So the first question is we will be solving the whole question. So it's appreciated if you guys do it with me. Okay. The first question is explain the difference between an extension in demand and an increase in demand. क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन के दरमियान और इंक्रीज के दरमियान क्या फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड. सो यू गाइज नो that extension or contraction occurs due to change in price and it causes movement along the demand curve and other factors are held constant, while the increase and decrease in demand is caused by other factors. And when we talk about other factors, so the prices are assumed constant and other factors causes a shift in the demand curve, right? यही पढ़ा था भाई हमने. तो question number one, let's start with it. Question number one. Okay. Extension in demand. Extension in demand is due to extension in demand is due to fall in price, which causes extension in demand is due to fall in price, which causes movement along the demand curve. Extension in demand is due to fall in price, which causes movement along the demand curve, keeping other factors constant. ठीक हो गया भाई. While increase in demand is due to changes in other factor. While increase in demand is due to changes in other factors. While changes in demand is due to changes in other factors, comma, keeping prices constant, it is represented by a rightwards shift in it is represented by a rightwards shift in demand curve. Okay guys, this is question number 1 part B. You may take pictures if you आप पीछे रह जाओ तो आपको पिक्चर लेनी चाहिए साथ साथ, बिकॉज वी हैव नॉट दैट मच टाइम कि मैं आपके लिए वेट कर सकूं. ठीक है. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन two reasons why the price of sugar may fall. 4 marks. Question is explain two reasons why the price of sugar may fall. दो रीजन बताएं कि शुगर की प्राइस क्यों कम हो जाएगी. नंबर 1, government might have provided subsidy. Number 2, there might be a fall in demand for sugar due to advertisement or due to a fall in income, anything. These two reasons, or there is a fall in indirect tax, or there is a fall in indirect tax. Okay, there is a fall in indirect tax, or there is a fall in cost of production. Okay, many reasons. So it's a 4 marker question. We have to explain two reasons
और उसमें 1 मार्क नॉलेज का, 1 मार्क एनालिसिस का मिलेगा। और इसने खुद बताया हुआ भी है कि आपको 2 ही रीजन समझाने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रीजन, वन रीजन, वन रीजन ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ शुगर, one reason of a fall in price of sugar is due to a decrease in is due to a decrease in demand for sugar is due to a decrease in demand for sugar due to advertisement is due to a decrease in demand of sugar due to advertisement, which will create which will create which will create surplus of sugar, causing which will create surplus of sugar causing price level to फॉल। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया, आपको 2 मार्क मिल गए। ठीक है। अनदर रीजन इज दैट अनदर रीजन इज दैट द गवर्नमेंट might have subsidized sugar. Another reason is that the government might have subsidized sugar, which will increase its supply, which will increase its supply, which will increase its supply, comma, creating surplus of sugar, comma, creating surplus of sugar, causing causing price level to causing price level to fall। ठीक है, ये आपके 4 मार्क्स पूरे हो गए। सही है, ये आपके 4 मार्क्स पूरे हो गए, राइट। ओके, then clear question number 2। Question number 3। Question number 3। Explain two influences on whether demand for product is price elastic or inelastic। Explain why demand for soap is price inelastic than demand for a luxury brand of perfume। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रीजंस बताओ, कि प्रोडक्ट की डिमांड क्यों इलास्टिक है। दो रीजंस बताओ कि प्रोडक्ट की डिमांड क्यों इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। दो रीजंस बताओ। तो भाई पहला रीजन कितने थे, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी का क्वेश्चन है। कितने रीजंस थे जो ये बताएंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। पहला फैक्टर था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, याद है आपको। पहला फैक्टर था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हमने पढ़ा है भाई सब्स्टिट्यूट ज्यादा है डिमांड इलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट कम है डिमांड इनइलास्टिक है। सर दूसरा प्रोडक्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सर अगर प्रोडक्ट लग्जरी है डिमांड इलास्टिक है, प्रोडक्ट नेसेसिटी है डिमांड इनइलास्टिक है। सर तीसरा तीसरा फैक्टर है एडिक्शन और नॉन एडिक्शन, मतलब प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग है या नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। ठीक है। सर चौथा फैक्टर था टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक होती है, याद आ गया। और पांचवा फैक्टर था प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। सर पांचवा फैक्टर क्या है, पांचवा फैक्टर है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। सही कह रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमें कोई भी दो रीजंस उठाने और उसको समझाना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, द फर्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ
The first factor is availability of substitutes. The first factor is availability of substitutes, comma, if more substitutes are available, comma, if more substitutes are available, comma, if more substitutes are available, so the demand is, comma, if more substitutes are available, so the demand is price elastic. If more substitutes are available, so the demand is price elastic. सही कह रहा हूँ? If more substitutes are available, so demand is price elastic. And if less substitutes are available, and if less substitutes are available, so demand is, and if less substitutes are available, so demand is price inelastic. ठीक है? If more substitutes are available, demand is elastic. If less substitutes are available, demand is inelastic. Another factor is type of product. Another factor is type of product, comma, if a product is, comma, if a product is luxury, comma, if a product is luxury, that is a want, comma, if a product is luxury, that is a want, which is not essential for living, which is not essential for living, so demand is price, so demand is price इलास्टिक. ठीक है, डिमांड क्या है? डिमांड प्राइस इलास्टिक है. एंड इफ अ प्रोडक्ट हैज, and if a product has less substitutes available, and if a product has less substitutes available, नहीं sorry, and if a product is necessity, sorry, हाँ, and if a product is, if a product is, and if a product is necessity, that is a need, and if a product is necessity, that is a need which is essential for living, that is a need which is essential for living, so will carry an, so will carry an inelastic demand. ठीक है? अब अगर आप सोप वाला क्वेश्चन कर रहे होते, अगर आप सोप वाला क्वेश्चन कर रहे होते तो आप क्या करते? आप लिखते कि भाई सोप की डिमांड इसलिए इनइलास्टिक है क्योंकि सोप नेसेसिटी है, परफ्यूम की डिमांड इसलिए इलास्टिक है क्योंकि परफ्यूम लग्जरी है. बस आप परफ्यूम का वर्ड जोड़ रहे होते. ठीक है? फिर आप बता दें सोप की डिमांड इसलिए भी इनइलास्टिक हो सकती है, क्या पता सोप के सब्स्टिट्यूट्स कम हो, और परफ्यूम की डिमांड इसलिए इलास्टिक हो सकती है क्योंकि परफ्यूम के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो. ठीक है ना? तो बस आपको करना क्या होता, आपको सिर्फ सोप और परफ्यूम का वर्ड यूज करना पड़ता. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आपका होमवर्क है. ये आपका होमवर्क है. डिफाइन इलास्टिक सप्लाई, एक्सप्लेन टू रीजंस वाई गवर्नमेंट में सब्सिडाइज फूड प्रोडक्शन. तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ. इलास्टिक सप्लाई में आंसर ग्रेटर देन वन होता है. इलास्टिक सप्लाई में देर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल एंड दी प्रोडक्ट इज रेडीली अवेलेबल. बस आपने ये लिखना है. ठीक है? सर दो रीजन बता दो गवर्नमेंट फूड प्रोडक्शन को क्यों सब्सिडाइज करे. क्योंकि इससे पॉवर्टी कम हो जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है. और बताओ, और गवर्नमेंट को फूड को क्यों सब्सिडाइज करना चाहिए? गवर्नमेंट को फूड को इसलिए भी सब्सिडाइज करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाए. ऐसा ही है भाई.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था मार्केट का, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ 6 मार्क के क्वेश्चंस जो पेपर के अंदर लाजमी आते हैं, उन एक सेकंड रुकना। डन है मिस, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से होके आए, उसके बाद ही ज्वाइन करेंगी ना, तो हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, 6 मार्क का क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आता है, ये 6 मार्क स्कोर करने वाले होते हैं, आप याद रखना। अब आप सुनना सुकून से, जितने भी आज तक 6 मार्क के सवाल आए थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। तो आए इनको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है? सही है, अब सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट सी। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ राइज इन इनकम मे अफेक्ट मार्केट फॉर गोल्ड। मुझे एक बात बताओ, 6 मार्क का सवाल है, क्या कह रहा है कि यार अगर डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करो, डिमांड सप्लाई को एक साथ यूज करो, और बताओ कि इनकम बढ़ेगी तो इससे गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहले सवाल के नंबर देख लो। 6 मार्क का सवाल अगर डायग्राम से आता है किसी भी चैप्टर से, तो 4 मार्क्स, याद रखना, 4 मार्क्स डायग्राम के होते हैं और 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के होते हैं। सर, 4 मार्क डायग्राम के होते हैं, 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? डिमांड सप्लाई। सर, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आप पहले के मुकाबले में ज्यादा खरीदोगे, तो इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। सही कह रहा हूँ, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। तो देखो, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फ्रूट विल अफेक्ट मार्केट फॉर फ्रूट। सवाल क्या कह रहा है कि डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करें और बताएं कि अगर फ्रूट खाने की अवेयरनेस हो रही है, फ्रूट से होने वाले फायदे बताए जा रहे हैं, तो इससे फ्रूट की मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। पहले ये बताएं, ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है, विच फैक्टर? दिस फैक्टर, नेम नेम नेम, नेम ऑफ दिस फैक्टर, ये एडवर्टिजमेंट है ना। तो भाई ये एडवर्टिजमेंट है, और एडवर्टिजमेंट किसकी हो रही है? फ्रूट की ना। तो जब एडवर्टिजमेंट होगी, फ्रूट के फायदे बताए बताए जा रहे हैं, तो फ्रूट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डायग्राम में फ्रूट का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड्स। तो यार सर, ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में कोई फर्क नहीं है, ऊपर गोल्ड की बात हो रही थी और ऊपर गोल्ड की डिमांड बढ़ी थी इनकम के बढ़ने की वजह से, अभी फ्रूट की डिमांड बढ़ी है एडवर्टीजमेंट की वजह से। ठीक है, तो आंसर सेम है, बस आपको वर्डिंग्स चेंज करने होंगे। गोल्ड की जगह आप फ्रूट लिखोगे और इनकम की जगह अब आप रीजन को एडवर्टीजमेंट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Analyze using demand and supply diagram how an increase in income will affect market for luxury brand of perfume। सवाल कह रहा है कि अगर डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करो, बताओ कि अगर इनकम बढ़ती है तो इससे परफ्यूम की मार्केट के ऊपर क्या फर्क आएगा। तो आपने बोला सर इनकम बढ़ रही है, तो दोस्त जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी परफ्यूम की, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो सेम सेम क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगला पढ़ता हूँ। Using demand and supply diagram, analyze the effect of a rise in price of firm X jeans on the market of firm Y jeans। मुझे बताओ ये कौन सा केस है? सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है भाई। ये कह रहा है एक्स जीन्स की प्राइस बढ़ रही है तो इससे वाई जीन्स की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कौन सा केस है? ये है सब्स्टिट्यूट का केस। तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक्स जीन्स की प्राइस बढ़ती है तो एक्स जीन्स की क्वांटिटी डिमांड कम होगी। सर, एक्स जीन्स की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स जीन्स की क्वांटिटी डिमांड कम होगी। जब एक्स जीन्स की डिमांड कम होगी तो लोग इसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट मारेंगे वाई जीन्स पे, तो वाई जीन्स की डिमांड बढ़ेगी। तो वाई जीन्स का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड्स। तो यार ये वाई जीन्स की डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि एक्स महंगी हुई है। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? एक नाम था इनका, ये सारे के सारों को क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं अदर फैक्टर्स। याद है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Analyze using demand and supply diagram how the market for toothpaste would be affected by an increase in population। ये कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम को यूज करो और बताएं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इससे टूथपेस्ट की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपने बोला सर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सर, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी।
जब टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ेगी तो टूथपेस्ट का जो डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो सारे के सारे सवालों के आंसर सेम थे, बस फर्क किसका था, रीजन का था और प्रोडक्ट का था। तो यार 6 मार्क का सवाल जब भी डायग्राम का आएगा, डायग्राम वाला आए, तो 4 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के। डायग्राम बनाने के 4 मार्क है, वो 4 मार्क कैसे मिलेंगे? हम लोग जो है वो ये वाला सवाल सवाल जीन्स वाला सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। सर डायग्राम बनाने के 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे, अब सुनना। अब सुनना गौर से। सर सबसे पहले आपने 2 एक्सिस बनानी है, ठीक है, और आपने लेबलिंग करनी है। जिस बंदे ने ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ वाई जीन्स और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ वाई जीन्स, उसको मिल जाएगा 1 मार्क। जिस बंदे ने ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ वाई जीन्स और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ वाई जीन्स, उसको मिल जाएगा 1 मार्क। और उसको ये जो 1 मार्क मिलेगा, ये किसका मिलेगा, एक्सिस की लेबलिंग का। ठीक है। अब मुझे बताओ, इतने टाइम से अपन पढ़ रहे हैं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है अपवर्ड होता है? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है अपवर्ड होता है? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, ऐसा ही है भाई। तो सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया। जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी। ठीक है, वहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी। बेटा डिमांड सप्लाई, अगर आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना दिया तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। अब सर वाई जीन्स की डिमांड बढ़ी थी तो डिमांड कर्व ने किधर शिफ्ट मारा, राइटवर्ड्स। तो आप देखो ये वाई जीन्स की डिमांड बढ़ रही है, अगर आपने डिमांड कर्व को सही तरफ शिफ्ट करा तो 3 मार्क हो गए। जहां पर नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई लेफ्ट पे न्यू प्राइस और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी। तो सर ये आ गई आपकी न्यू प्राइस, सर ये आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी, और सर ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम। सही है भाई। इस डायग्राम को बनाने के आपके 4 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं भाई इस डायग्राम को बनाने के आपके? 4 मार्क्स है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सीख लो फिर से एक बार। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एन इंक्रीज इन डिमांड, एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई जीन्स, एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई जीन्स फ्रॉम D to D1 ड्यू टू rise in price of, due to rise in price of X jeans will create shortage of Y jeans, will create shortage of Y jeans, will create shortage of Y jeans। शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ती है, डायग्राम में ऐसा हो रहा है। will create shortage of Y jeans causing equilibrium price, causing equilibrium price to increase from P to T1, which will provide signal to consumer, which will provide signal to consumer, which will provide signal to consumer. So he will extend, which will provide signal to producer, sorry, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, which will provide signal to producer. So he will extend, so he will extend, so he will extend equilibrium quantity. So he will extend equilibrium quantity from Q to Q1, comma, this is how, comma, this is how new equilibrium point, comma, this is how new equilibrium point, comma, this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। ठीक है। अब बताओ कौन से कर्व में मूवमेंट है, कौन से कर्व में शिफ्ट है, कोई बच्चा बता सकता है? कौन से कर्व में मूवमेंट है, कौन से कर्व में शिफ्ट है? ऑल्सो मूवमेंट अलोंग, ऑल्सो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व
shows responsiveness of producer. Also movement along supply curve shows responsiveness of producer due to changes in demand. ठीक है भाई. Also movement along supply curve shows responsiveness of producer due to changes in demand. ठीक है भाई. ये आपकी डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी. Analyze using demand and supply diagram how a fall in price of cotton would affect market for cotton shirts. क्या कह रहा है भाई. डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करो और बताओ अगर कॉटन की प्राइस कम होगी तो इससे कॉटन शर्ट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. अब पहले मुझे एक बात बताओ. कॉटन की प्राइस कम हो रही है इससे कॉटन शर्ट्स की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. अब सुनना सुकून से. देखो बच्चों ने इसको दो केसेस थे, दो आंसर्स थे इस सवाल के और दोनों पे एग्जामिनर ने मार्क्स दिए थे. एक बच्चे ने इसको कॉम्प्लीमेंट्री को अज्यूम करके करा सॉल्व और एक बच्चे ने इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझा. दोनों का आंसर सही था, दोनों का आंसर सही था. अब सुनना मैं दोनों 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 डिस्कस कर लेता हूं. सुनना. मुझे एक बात बताओ. अगर कॉटन की प्राइस अगर कॉटन की प्राइस कम होती है तो कॉटन की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और जब कॉटन की डिमांड बढ़ेगी तो कॉटन शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और जब कॉटन शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो कॉटन शर्ट्स का जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट सस्ता हो गया था कॉटन शर्ट बनाने का. अच्छा मुझे एक बात बताओ. सर कॉटन की प्राइस कम हुई है इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई ना. तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी. जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा. राइट वर्ड शिफ्ट होगा. किसका भाई. कॉटन शर्ट का. तो भाई या तो आप डिमांड के बढ़ने की डायग्राम बना सकते थे या तो सप्लाई के बढ़ने की डायग्राम बना सकते थे. दोनों आपको मार्क ले देती, कोई मसले वाली बात नहीं थी. दोनों आपको मार्क ले देती. ऐसा ही है भाई. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. Analyze using demand and supply diagram how a subsidy given to producer could affect market for electric car. ये कह रहा है कि डिमांड सप्लाई डायग्राम यूज करें और बताएं कि सब्सिडी इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसर्स को दिए, इस सब्सिडी का क्या इफेक्ट होगा. बताओ भाई सब्सिडी से क्या होता है. सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है. हमने कितना पढ़ा है भाई. सर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है. सर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है तो डायग्राम बननी चाहिए सप्लाई कर्व के किधर शिफ्ट होने की. राइट वर्ड शिफ्ट होने की. तो सर इलेक्ट्रिक कार की सप्लाई क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स आर बीइंग सब्सिडाइज्ड. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट. क्या कह रहा है भाई. डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करें और बताएं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव होगा तो इससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा. बताओ. इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो सप्लाई कम होती है. इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो सप्लाई कम होती है. इनडायरेक्ट टैक्स जब रिमूव होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी. सप्लाई बढ़ जाएगी. सही कह रहा हूं. अब बताओ भाई. इस बार इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव हो रहा है. इस बार रिमूव हो रहा है ना इनडायरेक्ट टैक्स. तो इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी और जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगा. राइट वर्ड शिफ्ट करेगा. सही कह रहा हूं. सर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करेगा. राइट वर्ड शिफ्ट करेगा. अगला क्वेश्चन. Using a demand and supply diagram, analyze the effect of an increase in cost of producing copper on market of copper. ये कौन सा फैक्टर है. ये कौन सा फैक्टर है भाई. डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करें बताएं कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉपर बढ़ेगी तो इससे कॉपर की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. ये कौन सा फैक्टर है. ये फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐसा ही है भाई. तो सवाल क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है
तो यार जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। और जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही कह रहा हूँ। तो अब इस बार हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम लोग ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आ जाओ फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। आ जाओ फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डायग्राम के 4 मार्क लेने हैं। डायग्राम के 4 मार्क कैसे आएंगे, सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी, ठीक है, और ऊपर लेबलिंग कर ली प्राइस ऑफ कॉटन शर्ट, ठीक है, और नीचे लेबलिंग कर ली क्वांटिटी ऑफ कॉटन शर्ट। सर ऊपर लेबलिंग करी प्राइस ऑफ कॉटन शर्ट, नीचे लेबलिंग करी क्वांटिटी ऑफ कॉटन शर्ट। यहां तक 1 मार्क मिल गया एक्सिस की लेबलिंग का। बेटा बचपन से सिखा रहा हूं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है। तो सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया। ऐसा ही है भाई, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया और ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया। यहां तक 2 मार्क मिल गए। जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी। तो सर ये आपकी प्राइस हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। अब सर आपकी सप्लाई कम हो रही थी क्योंकि कॉटन शर्ट बनाने के लिए जो कॉटन चाहिए वो महंगा हो गया। तो सर आपकी सप्लाई बढ़ी तो आपके सप्लाई कम हुई, तो आपकी सप्लाई कर्व ने लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा और आपने एरो से इसको रिप्रेजेंट करा। तो यहां तक आपको 3 मार्क मिल गए। अब जहां पर नया सप्लाई कर्व और पुराना डिमांड कर्व इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। तो सर ये आ गई न्यू प्राइस और सर ये आ गई न्यू क्वांटिटी। सही कह रहा हूँ भाई। सर ये आ गई न्यू प्राइस, ये आ गई न्यू क्वांटिटी। देखो भाई सप्लाई कम हुई, शॉर्टेज हुई, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांड कम हुई और ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम। यहां तक हमें 4 मार्क मिल गए। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाकी 4 मार्क मिलेंगे। तो अब आप डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे भाई। सबसे पहले आप लिखेंगे अ डिक्रीज इन सप्लाई, ऑफ कॉटन शर्ट्स। बेटा पहला सवाल कर रहे हैं, अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कॉटन शर्ट्स ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ कॉटन, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कॉटन था, सॉरी। तो एक काम करो, इस सवाल को कर दो आप, इस सवाल को आप लास्ट वाला कर दो, कॉपर वाला कर दो, ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम बना चुके हैं ना। सॉरी प्राइस उधर कम हो रही थी, तो इसको कॉपर वाला कर दो, इसको कॉपर कर दो, ठीक है। इसको कॉपर कर दो, कॉपर कॉपर, इसको कॉपर कर दो, ठीक है भाई। इसको कॉपर कर दो। चलो ठीक हो गया भाई, इसको आपने कॉपर कर दिया, सेट है, हो गया। सॉरी, अच्छा चले भाई। अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कॉपर, अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कॉपर, अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कॉपर ड्यू टू rise in cost of production, due to rise in cost of production, a decrease in supply of copper due to rise in cost of production, a decrease in supply of copper from S to S1 due to rise in cost of production will create shortage of copper, सही कह रहा हूँ, which will create shortage of copper, which will create shortage of copper, causing price level to increase, which will create shortage of copper, causing price level to rise from P to P1। सही है। विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू, इस बार सिग्नल किसको मिलेगा दोस्त, विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू कंज्यूमर। सही कह रहा हूं, विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू कंज्यूमर, सो ही विल कॉन्ट्रैक्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, so he which will provide signal to consumer, so he will contract equilibrium quantity, so he will contract
equilibrium quantity of copper from Q to Q1, comma, this is how new equilibrium point, comma, this is how new equilibrium point is achieved from E to E1. Also movement along, हाँ भाई, कौन से कर्व में मूवमेंट है? सप्लाई कर्व में शिफ्ट है, डिमांड कर्व में मूवमेंट है, तो अब क्या लिखें? ऑल्सो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व शोज, also movement along demand curve shows responsiveness of, also movement along demand curve shows responsiveness of consumer due to changes in supply, due to changes in supply। ठीक हो गया भाई? डन सीन है? आगे चलें भाई। नेक्स्ट, शुड वी गो फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे, हम डिस्कस पूरा कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन फिजी ड्रिंक्स। यार ये कौन सा टैक्स है, पहले ये बताओ, ये कौन सा टैक्स की बात कर रहा है? यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन फिजी ड्रिंक। बेटा गुड्स के ऊपर टैक्स है, गुड्स के ऊपर टैक्स है, बेटा गुड्स के ऊपर टैक्स लगा है। फिजी ड्रिंक एक गुड है, फिजा के ऊपर नहीं लग गया है, फिजी ड्रिंक के ऊपर लगा है। तो गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, सही कह रहा हूं? तो डायग्राम कौन सी बनाओगे भाई? लेफ्टवर्ड शिफ्ट की। ठीक हो गया? अभी जो डायग्राम पीछे करी सेम टू सेम एज इट इज लगेगा, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है, याद रखना। Using demand and supply diagram, analyze the effect of imposition of indirect tax on equilibrium price and quantity of tobacco. Same question, कि indirect tax लग रहा है, इससे प्राइस और क्वांटिटी टोबैको की, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी। ठीक है, ये खुद हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर अगर 6 मार्क का सवाल डायग्राम वाला आता है तो 4 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के। और ये सवाल आप तभी एस कर सकते हैं जब आपको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और आपको फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई याद हो। अगर आपको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई हैं तो आप उसको देख के जज कर लोगे कि कौन सा केस है डिमांड के बढ़ने का, डिमांड के कम होने का, सप्लाई के बढ़ने का, या फिर सप्लाई के कम होने का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। पहले मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर मुझे एक बात बताना। एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क मे अफेक्ट रेवेन्यू अर्न बाय मिल्क प्रोड्यूसर एंड सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर। 6 मार्क का सवाल है। अच्छा मुझे बताओ, ये डायग्राम वगैरह का सवाल है, क्या इस सवाल में डायग्राम बनानी चाहिए? नो, इस सवाल में डायग्राम नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने मांगी नहीं है, सिंपल इज दैट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मिल्क की प्राइस बढ़ रही है तो इससे मिल्क प्रोड्यूसर के रेवेन्यू पे और सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर के रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सर 6 मार्क का सवाल है, आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। कितने पॉइंट्स लिखेंगे? 3 पॉइंट्स, और हर पॉइंट के 2 मार्क हैं। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, इसका आंसर आप होते तो आप क्या लिखते? देखो, नॉर्मल बच्चे यही बोलेंगे कि सर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो मिल्क की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और लोग शिफ्ट हो जाएंगे सॉफ्ट ड्रिंक पे जो कि इसका सब्स्टिट्यूट है, तो सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड बढ़ेगी तो सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ेगा और मिल्क प्रोड्यूसर का रेवेन्यू डिक्रीज होगा। लेकिन फाद मनाफ तुम्हें काम की बात बता रहा है, जब भी वो रेवेन्यू के ऊपर सवाल पूछेगा ना, किसके ऊपर? रेवेन्यू के ऊपर, तो आप फौरन से पीईडी पे निकल जाना। जब भी वो रेवेन्यू के ऊपर सवाल पूछे तो आप पीईडी के ऊपर निकल जाना।
तो अगर मिल्क की डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट लग्जरी होता है, तो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पे स्विफ्ट मार जाएंगे और सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मिल्क प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर मिल्क की डिमांड इनइलास्टिक है तो लोग मिल्क कंज्यूम करते रहेंगे, लोग मिल्क कंज्यूम करते रहेंगे और मिल्क प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपके 3 पॉइंट्स पूरे होते हैं। ठीक हो गया? अब मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं, आ जाओ। सबसे पहले आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क will contract, an increase in price of milk will contract quantity demanded of milk, considering demand to be elastic, considering demand to be elastic, consumers will shift to soft drink, considering demand to be elastic, consumers will shift to soft drink, considering demand to be elastic, consumers will shift to soft drink, which will increase its demand, will shift to soft drink, which will increase demand for soft drink, comma, increasing revenue of, comma, increasing revenue of soft drink producer, increasing revenue of soft drink producer and reducing revenue of milk producer, and reducing revenue of milk producer। यहां तक आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको इनइलास्टिक लिखना पड़ेगा। However, if demand for milk is, however, if demand for milk is price inelastic, however, if demand for milk is price inelastic, so an increase in price, so an increase in price by a larger percentage, so an increase in price by a larger percentage will contract, so an increase in price by a larger percentage will contract quantity demanded by a smaller percentage, will contract quantity demanded by a smaller percentage, increasing revenue for, increasing revenue for milk producers। ठीक है, increasing revenue for milk producers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फुटबॉल शर्ट, मैंने पहनी नहीं है, ऑन डिमांड फॉर फुटबॉल शर्ट एंड ऑन डिमांड फॉर बास्केटबॉल शर्ट। बेटा कौन सा सवाल है, किसका है? फुटबॉल शर्ट और फुटबॉल शॉर्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब जाहिर सी बात है, पठान तो है नहीं कि पजामा पहन के चले जाएंगे। सही है। और इसके और बास्केटबॉल शर्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो अब बताओ, अगर फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ती है तो फुटबॉल शॉर्ट की भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, जो एक ही वक्त पे डिमांड करा जाता है। और अगर फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ती है तो बास्केटबॉल शर्ट की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो बास्केटबॉल शर्ट की डिमांड कम होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। सही है ना? और सब्स्टिट्यूट है और ऑल्टरनेटिव जो आप एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हो। अब सर आपने बोला था 6 मार्क के सवाल के अंदर 3 पॉइंट लिखने, यहाँ तो बनते ही दो हैं। तो भाई यहाँ पे इन्हीं 2 पॉइंट में आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। 1 मार्क इफेक्ट बताने का फुटबॉल शॉट के ऊपर, सब्स्टिट्यूट है इसकी डेफिनेशन, 3 मार्क्स। बास्केटबॉल शर्ट पे इम्पैक्ट, सब्स्टिट्यूट है और उसकी डेफिनेशन। ठीक है भाई, आ जाए लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लें। सबसे पहले आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर
सबसे पहले आप रखेंगे एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फुटबॉल शर्ट्स। सबसे पहले आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फुटबॉल शर्ट्स। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फुटबॉल शर्ट्स will increase demand for football shorts as it is a complementary good, as it is a complementary good which is demanded together, which is which is demanded together, which is demanded together at the same time, which is demanded together at the same time। ये पहला हो गया। ठीक है। Moreover, an increase in demand for moreover an increase in demand for football shirts will reduce demand for will reduce demand for football for basketball shirts will reduce demand for basketball shirts as it is a substitute good which can be used in place of which can be used in place of which can be used in place of another good as an option। ठीक हो गया। Okay, so the next chapter which we are starting is market failure। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है मार्केट फेलियर। अब देखो, आप याद रखना, मार्केट फेलियर तब अगर होगा जब फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन नहीं कर रही होगी। क्या बोला भाई? मार्केट फेलियर तब अगर होगा जब फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट सोसाइटी के मुताबिक रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं कर रही होगी। यानी कि मार्केट में ओवर एलोकेशन हो रही होगी और अंडर एलोकेशन हो रही होगी, जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा होगा। उस नुकसान को कहते हैं वेलफेयर लॉस। क्या बोला भाई? सर, मार्केट फेलियर तब अगर होगा जब रिसोर्सेस की एलोकेशन सोसाइटी के मुताबिक नहीं हो रही होगी। यानी कि मार्केट में रिसोर्सेस की ओवर एलोकेशन हो रही होगी और अंडर एलोकेशन हो रही होगी, जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा होगा। उस नुकसान को वेलफेयर लॉस कहते हैं। जैसे आसान सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो, सर डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होता है, सर मेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद होता है। तो सर डीमेरिट गुड की हो रही है ओवर एलोकेशन, होनी चाहिए अंडर एलोकेशन। सोसाइटी के मुताबिक अंडर एलोकेशन होनी चाहिए डीमेरिट गुड की, लेकिन हो ओवर एलोकेशन रही है, मतलब सोसाइटी के मुताबिक काम नहीं हो रहा। सर मेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, उसकी अंडर एलोकेशन हो इसकी ओवर एलोकेशन होनी चाहिए, लेकिन हो रही है अंडर एलोकेशन, मतलब सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन नहीं हो रही, तभी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को वेलफेयर लॉस कहते हैं और तभी मार्केट फेलियर एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाईजान, अगर सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन हो जाए तो मार्केट फेलियर का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सर सोसाइटी के मुताबिक कभी भी एलोकेशन नहीं होती, तभी क्या एग्जिस्ट करता है? मार्केट फेलियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब सुनना सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट। तो आप याद रखना, सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी की कॉस्ट है और सोशल बेनिफिट भी पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है। सर सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी की कॉस्ट है, सोशल बेनिफिट पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है। सर सोशल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, एक है प्राइवेट कॉस्ट, एक है एक्सटर्नल कॉस्ट। सर सोशल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट है, कौन कौन सी? एक है प्राइवेट कॉस्ट और एक है एक्सटर्नल कॉस्ट। सर प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कंज्यूमर बेयर करेगा, और कौन बेयर करेगा? प्रोड्यूसर। सर कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट है वो प्राइस की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर के लिए जो कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में। सर एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करेगा, और थर्ड पार्टी बेयर करेगा तीन फॉर्म्स में, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग की फॉर्म में। अब सुनना सुकून से।
सर प्राइवेट कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट है। एक कॉस्ट कंज्यूमर बेयर करेगा, एक कॉस्ट प्रोड्यूसर बेयर करेगा। सर कंज्यूमर के लिए किसी भी गुड की प्राइस है, प्रोड्यूसर के लिए उस गुड को बनाने की कॉस्ट है, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सर एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करेगा, तीन फॉर्म में बेयर करेगा, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग की फॉर्म में। अब सुनना मेरी बात गौर से। सर जो सोसाइटी की प्राइवेट कॉस्ट है ना, वो हमेशा प्राइस की फॉर्म में होगी, और प्रोड्यूसर के लिए होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में। सर एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी बेयर करती है तीन फॉर्म में, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग की फॉर्म में। सर सोशल बेनिफिट में दो बेनिफिट हैं, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। सर सोशल बेनिफिट में दो बेनिफिट हैं, कौन कौन से? प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। सर प्राइवेट बेनिफिट कौन रिसीव करेगा? कंज्यूमर रिसीव करेगा सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर रिसीव करेगा रेवेन्यू की फॉर्म में। सर प्राइवेट बेनिफिट वो बेनिफिट है जो दो लोग रिसीव करेंगे, कौन कौन? एक कंज्यूमर रिसीव करेगा और एक प्रोड्यूसर रिसीव करेगा। सर कंज्यूमर रिसीव करेगा सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर रिसीव करेगा रेवेन्यू की फॉर्म में। ऐसा ही है भाई। और सर थर्ड पार्टी रिसीव किसके फॉर्म में करेगी? एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में। तो आपको क्या बताया भाई? सर सोशल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो पूरी सोसाइटी रिसीव करेगी। सोशल बेनिफिट में दो बेनिफिट है, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। सर प्राइवेट बेनिफिट वो बेनिफिट है जो कंज्यूमर रिसीव करेगा और प्रोड्यूसर रिसीव करेगा। कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में होगा, प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू की फॉर्म के अंदर होगा। सर एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करेगी एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में। एग्जाम्पल दे रहा हूं। सर मैंने लगाई सिगरेट की फैक्ट्री। सर मैंने लगाई सिगरेट की फैक्ट्री। सर मैंने लगाई सिगरेट की फैक्ट्री। उसकी वजह से पूरी सोसाइटी को नुकसान हुआ। उस नुकसान को कहते हैं सोशल कॉस्ट। और उस सोसाइटी की, उस सिगरेट की फैक्ट्री की वजह से पूरी सोसाइटी को फायदा भी हुआ। उस फायदे को कहते हैं सोशल बेनिफिट। अब सोशल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। सर एज अ कंज्यूमर जो आप प्राइवेट कॉस्ट फेस करोगे वो होगी प्राइस ऑफ सिगरेट। अब एग्जांपल लेते हैं कि खिजर आया मेरी सिगरेट की फैक्ट्री के पास, मेरी फेक सिगरेट की फैक्ट्री पे आया, और इसने सिगरेट खरीदी। तो एज अ कंज्यूमर जो इसकी सिगरेट खरीदने की कॉस्ट है ना, जो जो ये प्राइस पे कर रहा है, जो इसकी प्राइस ऑफ सिगरेट है, वो इसकी प्राइवेट कॉस्ट है। एज अ कंज्यूमर जो इसकी प्राइवेट कॉस्ट है वो है प्राइस ऑफ सिगरेट। और एज अ प्रोड्यूसर इसकी प्राइवेट कॉस्ट, मेरी प्राइवेट कॉस्ट क्या है? सिगरेट बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर एज अ कंज्यूमर मेरी प्राइवेट कॉस्ट है प्राइस ऑफ सिगरेट, और एज अ प्रोड्यूसर मेरी प्राइवेट कॉस्ट है सिगरेट को बनाने की कॉस्ट, जिसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनना, एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी क्या बेयर करेगा? मेरी सिगरेट की फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा था, उस धुआं से एयर पॉल्यूशन हो रहा था, और आसपास जो लोग रह रहे थे उनको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा था। और नॉइस पॉल्यूशन का क्या मतलब है कि भाई मेरी जो सिगरेट की फैक्ट्री है, मेरी जो सिगरेट की फैक्ट्री है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, और वो बड़ी बड़ी मशीनें बहुत ज्यादा शोर वगैरह कर रही थी, तो उसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन हो रही थी, दूसरों को नुकसान हो रहा था। और सर चौथा है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है एक गाड़ी में चार दोस्त जा रहे हैं, एक ने सुट्टा मारा, दूसरे तीन बीमार हो गए और हॉस्पिटल पहुंच गए। सुट्टा उसने मारा, मजा उसको मिला, लेकिन नुकसान दूसरों का हुआ। जिसने जिसने सिगरेट नहीं पी उसका नुकसान हो गया, तो वो कौन है? थर्ड पार्टी। ठीक है। और थर्ड पार्टी को नुकसान किस किस फॉर्म में होता है? एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग की। सर सोशल बेनिफिट में दो बेनिफिट है, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। सर प्राइवेट बेनिफिट कंज्यूमर रिसीव करेगा सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में, सर प्रोड्यूसर रिसीव करेगा रेवेन्यू की फॉर्म में। सर एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी रिसीव करेगी किसकी फॉर्म में? एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में। सर मैंने किधर से पूछा, किधर तुझे सिगरेट पी के क्या मिली? बोला सुकून, सेटिस्फेक्शन। बोला सेठ आपको क्या मिला? मैंने बोला मुझे पैसे मिले। बोला तो सर आपका रेवेन्यू, आपका फायदा हुआ रेवेन्यू की फॉर्म में, मेरा फायदा हुआ सुकून, सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में। बेटा मेरी सिगरेट की फैक्ट्री है ना, उसके आसपास एक गांव था, और जैसे ही मैंने फैक्ट्री लगाई तो ऑब्वियसली मुझे लेबर चाहिए थी, तो आसपास आसपास की सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, तो ये थर्ड पार्टी को फायदा हुआ ना। मेरी सिगरेट की फैक्ट्री की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिला, तो गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट भी थर्ड पार्टी है ना। ऐसा ही है भाई। तो सर सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पूरी सोसाइटी बेयर करती है, सोशल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो पूरी सोसाइटी रिसीव करती है। सर सोशल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट कंज्यूमर रिसीव करता है और प्रोड्यूसर रिसीव करता है।
सर एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करती है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग की फॉर्म में। सर सोशल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो पूरी सोसाइटी रिसीव करती है। सोशल बेनिफिट में दो बेनिफिट है, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट कंज्यूमर रिसीव करता है और प्रोड्यूसर रिसीव करता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में रिसीव करता है, प्रोड्यूसर रेवेन्यू की फॉर्म में। सर एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करती है एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में, और गवर्नमेंट रिसीव करती है टैक्स रेवेन्यू की फॉर्म में। जरा जल्दी से ये पढ़ दें। जिसने ये पढ़ लिया वो ये पढ़ दे सोशल बेनिफिट का पैराग्राफ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ मार्केट फेलियर की कॉजेज के ऊपर। अब सुनना, मार्केट फेलियर की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि मार्केट फेलियर अकर होता है ड्यू टू ओवर एलोकेशन एंड अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा ही है भाई, हमने क्या पढ़ा था कि सर मार्केट फेलियर अकर होता है ड्यू टू ओवर एलोकेशन और अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मुझे बताओ सर, मार्केट फेलियर अकर होगा ड्यू टू ओवर एलोकेशन और अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट फेलियर की चार वजह हैं, कौन कौन सी? पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड एंड मोनोपोली। कितनी वजह है भाई मार्केट फेलियर की? पांच। कौन कौन सी? पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड और मोनोपोली। अब सुनना, पब्लिक गुड क्या होता है। देखो, अब आप याद रखना, अब याद रखना, पब्लिक गुड, अब याद रखना, पब्लिक गुड वो गुड है जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर, और चार्ज करेगा टैक्स के थ्रू। सर पब्लिक गुड वो गुड होगा जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करेगा यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, और चार्ज करेगा टैक्सेस के थ्रू। क्या बोला आपको? सर पब्लिक गुड वो गुड है जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, और वो चार्ज करेगा टैक्सेस के थ्रू। सही कह रहा हूं भाई? सर पब्लिक गुड वो गुड है जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, और चार्ज करेगा टैक्स के थ्रू। ऐसा ही है भाई? ऐसा ही है भाई? अब मुझे बताओ, पब्लिक गुड के कितने फीचर्स हैं? तीन। कौन कौन से? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल। अब सुनना, नॉन राइवल क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है, नॉन रिजेक्टेबल क्या है। अब देखो, नॉन राइवल का क्या मतलब है। मिसाल ले लो, ये मेरे ऊपर लाइट है, ठीक है? इस लाइट के नीचे से पहले मैं गुजरा, उसके बाद उमर गुजरा। तो सवाल यह है कि क्या उमर के लिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी रिड्यूस हो जाएगी? क्या उमर के लिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम होगी? यार अगर मैं इस स्ट्रीट लाइट के नीचे 5 की जगह 10 घंटे भी गुजार लूंगा तो उमर को उतनी ही रोशनी मिलेगी। तो इसका मतलब है, अगर फहद अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है तो इससे उमर की कंजम्पशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल नॉट रिड्यूस कंजम्पशन फॉर द अदर इंडिविजुअल। इसको कहते हैं नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है? अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो इससे दूसरा एक्सक्लूड नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो भी मैं स्ट्रीट लाइट के अगर आगे खड़ा भी हो जाऊं तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हुए हैं मैं उनको स्ट्रीट लाइट की रोशनी कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता, मैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। इसलिए स्ट्रीट लाइट नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो व्हाट इज नॉन एक्सक्लूडेबल? कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल नॉट एक्सक्लूड अदर इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। मेरी कंजम्पशन से मैं दूसरे को रोक नहीं सकता कंज्यूम करने से। सर नॉन रिजेक्टेबल क्या है? चाहे आप पे करो या ना करो, आप इस गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
सर अमीर आदमी टैक्स पे करता है, गरीब टैक्स पे नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक बंदा बैठाया हो गवर्नमेंट ने, ओए गरीब आया जल्दी लाइट बंद कर, ऐसा तो नहीं होता। तो ये नॉन रिजेक्टेबल है, चाहे पे करो नहीं करो फायदा मिलेगा। अब सवाल ये है कि पब्लिक गुड क्यों मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या फिर पब्लिक गुड क्यों प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड नहीं करता। व्हाट इज द रीजन कि पब्लिक गुड प्राइवेट सेक्टर यानी कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्यों क्यों प्रोवाइड नहीं करता? क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है? फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है? यार कंज्यूमर को पता है कि जब एक चीज फ्री में मिल रही है तो मैं पैसे क्यों दूं। जब ये पैसे नहीं देगा तो प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज नहीं करेगा, जब वो प्राइस चार्ज नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट नहीं बना सकता, और जब वो प्रॉफिट नहीं बना सकता तो वो ये गुड भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फिर ये गुड प्रोवाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। और टाइप चार्ज कैसे करेगा? टैक्स के थ्रू, क्योंकि अगर अपन इज्जत से दे रहे होते तो प्राइवेट प्रोड्यूसर को भी पैसे दे देते। तो भाईजान फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है कि कंज्यूमर को पता है कि जब एक चीज फ्री में मिल रही है तो पैसे क्यों दूं। जब ये पैसे नहीं देगा तो प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, जब प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, जब प्रोड्यूसर प्रॉफिट नहीं कमा सकता तो वो ये गुड भी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फिर ये गुड कौन प्रोवाइड करेगा? ये गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि इस गुड के लिए टैक्सेस के थ्रू चार्ज करना। ठीक है, अब आप ये पढ़ें जल्दी से, फटाफट ये पढ़ें। ओके नाउ लिसन। ये प्राइवेट गुड क्या होता है सुनना। बेटा प्राइवेट गुड वो गुड है जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वो इन गुड्स के लिए चार्ज करेगा प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। सर प्राइस मैकेनिज्म वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस प्राइस को और क्वांटिटी को मिलकर डिसाइड करते हैं। क्या बोला सर? प्राइस मैकेनिज्म वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस प्राइसेस को मिलकर सेट करती हैं। अब सुनना मेरी बात गौर से। सर इस प्राइवेट गुड के तीन फीचर्स हैं, राइवल, एक्सक्लूडेबल, रिजेक्टेबल। एक केक है, उसके अंदर 8 पीसेस हैं। एक केक है, उसके अंदर 8 पीसेस हैं। 4 पीस मुझे मिलने चाहिए और 4 पीस राफे को मिलने चाहिए एक केक के अंदर। बल्कि केक से याद आया, शाफे भाई केक कहाँ पर है? नो ट्रीट नथिंग यार, आपको सबने विश करा, कुछ बंदा कुछ करता है लोगों के लिए, कुछ कुछ भी नहीं भाई। तो भाई एक केक है, उसके अंदर 8 पीसेस हैं। 4 मुझे मिलने चाहिए, 4 शाफे को मिलने चाहिए। मुझे ज्यादा भूख लग रही थी, मुझे ज्यादा भूख लग रही थी तो मैंने 5 पीसेस खा लिए। मैंने 5 पीसेस खा लिए, तो शाफे को कितने मिलेंगे? 3 पीसेस। सही कह रहा हूं? शाफे को कितने मिलेंगे? 3 पीसेस। तो इसका मतलब है अगर एक बंदा अगर एक बंदा कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी। सर अगर एक बंदा कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी। लेकिन स्ट्रीट लाइट में ऐसा नहीं होता। अगर मैं स्ट्रीट लाइट को 5 की जगह 10 घंटे भी कंज्यूम करूं तो इससे शाफे की कंजम्पशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट इज नॉन राइवल एंड प्राइवेट गुड इज राइवल। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है? अगर मैं पूरा का पूरा केक खुद खा जाऊं तो फिर शाफे के लिए केक नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है मैंने शाफे को एक्सक्लूड कर दिया। तो व्हाट इज एक्सक्लूडेबल? कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल
विल एक्सक्लूड अदर इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट, लेकिन स्ट्रीट लाइट में ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूं तो भी मैं किसी को स्ट्रीट लाइट की रोशनी को कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता, इसलिए स्ट्रीट लाइट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। रिजेक्टेबल क्या है भाई, मैं पैसे दूंगा तो गुड मिलेगा, नहीं दूंगा तो नहीं मिलेगा। स्ट्रीट लाइट वाला सीन नहीं है, पे करूं नहीं करूं फायदा मुफ्त में मिलेगा, ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अब आप ये पढ़ो, प्राइवेट गुड, फिर आगे चले। पढ़ो भाई, ये प्राइवेट गुड क्या है। चलूं आगे, आ जाओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। सर यार, ये डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? देखो, अब याद रखना, डीमेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोला आपको सर? सर, डीमेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये गुड ओवर प्रोड्यूस है, अंडर चार्ज है और ओवर कंज्यूम है। मतलब इसकी सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से सरप्लस होगा और प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो सर, डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये गुड ओवर प्रोड्यूस है, अंडर चार्ज है और ओवर कंज्यूम्ड है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन होती है। क्या होती है भाई? रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन। तो आपने बोला सर, डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद नुकसानदेह है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये गुड ओवर प्रोड्यूस है, अंडर चार्ज है और ओवर कंज्यूम्ड है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन होती है। सर, मेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, वो एक्सटर्नल बेनिफिट यानी कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल है हेल्थ केयर, एजुकेशन। लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये गुड अंडर कंज्यूम्ड है और अंडर प्रोड्यूस है। देखो, मेरिट गुड में कहानी हमने शुरू करी है, मेरिट गुड में मसला हमने शुरू करा है, मेरिट गुड में मसला हमने शुरू करा है, मेरिट गुड में हमना मेरिट गुड में हमने मसला शुरू करा है, ऐसा ही है। मेरिट गुड में मसला हमने शुरू करा है। जैसे याद है, वो जब वैक्सीन लग रही थी तो अपन क्या बोलते थे, बिल गेट्स हमारे अंदर पानी डाल रहा है, बिल गेट्स हमारे अंदर चिप घुसेड़ रहा है। मतलब बिल गेट्स इतना फारेग है, हम कितने बेवकूफ हैं कि बिल गेट्स इतना फारेग है कि हम पाकिस्तानियों के अंदर वो चिप डालेगा, हम सिर्फ लोगों की गीबत करते हैं, वो उधर बैठ के गीबत सुनेगा कि वो पुप्पो वाले काम जो अपन करते हैं ना। मतलब हम कितने बेवकूफ लोग हैं। एक और फिर वही वैक्सीन हमने पैसे दे के लगवाई, ऐसा ही है भाई। एक्सपो में मुफ्त में लग रही है वैक्सीन, अपन ने वो ली ही नहीं, क्योंकि अपने पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप अपने गार्ड के पास जाओ, जिसको बोलो कि आपके बच्चे की सारी पढ़ाई के पैसे मैं दूंगा, वो आपको बोलेगा कि मुझे नहीं पढ़ाना। क्यों? उसके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जाहिल को यही नहीं पता। आज अगर मैं किसी चौथी क्लास के बच्चे से, फोर्थ क्लास के बच्चे से ये पूछूं कि ये लोगों ने केएफसी में पत्थर उठा उठा के मारे, ये सही है या गलत है, तो वो बोलेगा गलत है। इतना बड़ा पठान, उसके छह छह बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सर पे टोपी रखी हुई है, यूं उठा उठा के पत्थर मार रहा है कांच पे। अबे जाहिल आदमी। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से इंसान को शऊर आता है, गलत सही की पहचान होती है। वो पठान को कुछ पता ही नहीं, दे मार सारे चार, इजराइल तेरी ऐसी की तैसी पत्थर मार रहा है। अबे पागल आदमी, इससे इजराइल का नहीं अपना नुकसान कर दिया तूने, अपने लोग बेरोजगार हो गए। इजराइल तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को इतना शौक है तो बम बांध और इजराइल पे भाग। कुछ का ऐसा करना भाई, अपने लोगों को पकड़ के मार रहा है। नताशा को कुछ कर नहीं सका, इजराइल को करेगा। नताशा भी भाग गई ना मुल्क छोड़ के।
लोगों को उड़ा उड़ा कर। तो मुझे बताओ भाई, डीमेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद है क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये गुड ओवर प्रोड्यूस है, अंडर चार्ज और ओवर कंज्यूम है। सर मेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, वो एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये गुड अंडर कंज्यूम है और अंडर प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस्ड है और हमें इसको अंडर प्रोड्यूस करना है, कौन सी पॉलिसी लगा सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, सब्सिडी, इससे तो सस्ता होगा, लोग चर्सी बन जाएंगे। एडवर्ट और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी। क्या कर सकते हैं? टैक्स लगाएं, कौन सा टैक्स लगाएं भाई? इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, सही कह रहा हूँ। तो सर ओवर प्रोड्यूस है, इसको अंडर प्रोड्यूस करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ। और ये ओवर कंज्यूम है, इसकी डिमांड ज्यादा है तो एडवर्टीजमेंट करो, एडवर्टीजमेंट होगी, नुकसान बताएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो एक पॉलिसी है अंडर प्रोड्यूस करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स, अंडर कंज्यूम करने के लिए एडवर्टीजमेंट, तीसरा है कंप्लीट बैन लगा दो, सिगरेट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, लेकिन इसका नुकसान है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे अगर हम सिगरेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। और इसके अलावा मिनिमम प्राइस लगा दो। कोई बच्चा जवाब दे मुझे चैट बॉक्स पे। कोई बच्चा बताओ मिनिमम प्राइस कहाँ लगता है, ऊपर नीचे? मिनिमम प्राइस कहाँ लगता है? इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे, ऊपर लगता है। तो अगर मिनिमम प्राइस लगेगी तो सिगरेट महंगी हो जाएगी, सिगरेट की प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, सही कह रहा हूँ। तो सर डीमेरिट गुड को सॉल्व करने के लिए देयर आर फोर पॉलिसीज। नंबर वन इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे सप्लाई कम होगी, अंडर प्रोड्यूस होगा। नंबर टू एडवर्टीजमेंट, जिससे डिमांड कम होगी, अंडर कंज्यूम होगा। नंबर थ्री मिनिमम प्राइस लगाओ, जिससे सिगरेट महंगी होगी। नंबर फोर कंप्लीट बैन कर दो। ठीक है। मेरिट गुड में दो मसले हैं। मेरिट गुड अंडर कंज्यूम्ड है और अंडर प्रोड्यूस्ड है, तो इसको ओवर प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे और इसको ओवर कंज्यूम कराने के लिए गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करे। उसके अलावा मैक्सिमम प्राइस लगाए, पढ़ाई को सस्ता कर दे। और क्या करे उसके अलावा? सोल प्रोविजन कर दे, सिगरेट को लोगों के लिए सिगरेट क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाई को, हेल्थ केयर और एजुकेशन को लोगों के लिए मैंडेटरी कर दे। ठीक है। तो अब आप देखो इधर, डीमेरिट गुड्स को सॉल्व करने के लिए पहली पॉलिसी इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको कल डिटेल में पढ़ाई थी। ठीक है। दूसरी पॉलिसी कौन सी यूज हो सकती है? एडवर्टीजमेंट। और तीसरी पॉलिसी कौन सी यूज हो सकती है? कंप्लीट बैन। और चौथी पॉलिसी हो सकती है मिनिमम प्राइस। सर मेरिट गुड को सॉल्व करने के लिए पहली पॉलिसी जो यूज हो सकती है वो है सब्सिडी, ये भी कल डिटेल में पढ़ी थी। दूसरी है एडवर्टाइजमेंट और तीसरी है सोल प्रोविजन और चौथी कौन सी है? चौथी है मैक्सिमम प्राइस। ठीक है।